اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ تنبیہات الاول من الجمل المحکیۃ ما قد یخفی فمن ذلك في المحکیۃ بعد القول فحق علینا قول ربنا انا لذائقون والاصل انکم لذائقون عذابی ثم عدل الى التکلم لانہم تکلموا بذلك عن انفسہم۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری آج کچھ تنبیہات کے بارے میں ہے۔ پہلی تنبیہ اس میں ہے کہ جملہ محکیہ کبھی کبھی مخفی ہوتا ہے۔ جملہ محکیہ کبھی کبھی مخفی ہوتا ہے، یعنی واضح اور آشکار نہیں ہوتا، اس میں خفا ہوتا ہے۔ قول کے بعد جو جملہ محکیہ ہے وہ کبھی کبھی اس میں خفا ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے جملہ محکی، جیسا کہ اس آیہ مجیدہ میں دیکھیے فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ۔ قول کے بعد جو یہ جملہ آ رہا ہے إِنَّا لَذَائِقُونَ، یہ جملہ محل شاہد ہے، یہ جملہ محکی قول ہے۔ قول ربنا کا یہ مفعول ہے انا لذائقون، اور محکی قول بھی ہے لیکن ہے مخفی، یہی محل شاہد ہے۔ قول ربنا انا لذائقون، یہ قول کے بعد جو جملہ آیا ہے انا لذائقون، یہ جملہ محکی مخفی ہے۔ یہ جملہ محکی، یہ جملہ محکی ہو مخفی ہے۔ علت خفا کیا ہے، کیوں مخفی ہے؟ توجہ فرمائیے عزیزو، علت خفا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہرگز عذاب کو چکھنے والا نہیں ہے، صحیح ہے نا، کہ متکلم کا صیغہ آئے انا لذائقون، پس یہ مقول قول نہیں ہے۔ مخفی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تو عذاب کو چکھنے والا نہیں ہے نا۔ کہیں کہ قول ربنا، ہمارے پروردگار کا قول کیا، انا لذائقون، ہم عذاب کو چکھنے والے ہیں۔ یہ بات تو صحیح نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہرگز عذاب کو چکھنے والا نہیں ہے، تاکہ متکلم کا صیغہ انا لذائقون آئے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ پس یہ محکی قول نہیں ہے، چونکہ اللہ تو عذاب کو چکھنے والا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دقت کریں، غور کریں اس سلسلے میں، تو یہ انا لذائقون محکی قول ہے۔ غور کریں، دقت کریں تو انا لذائقون جو ہے یہ محکی قول ہے۔ اصل میں یہ کیا ہے، مخاطب کی ضمیر ساتھ ہے، انکم لذائقون عذابی، کیونکہ مخاطبین جو ہیں وہ منکرین خدا ہیں جو عذاب کو چکھنے والے ہیں، منکرین خدا ہیں جو عذاب چکھیں گے، تو اصل میں مخاطب کی ضمیر ہے انکم لذائقون عذابی، یعنی تم میرے عذاب کو چکھنے والے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے، منکرین کو کہہ رہا ہے جو منکر خدا ہیں کہ انکم لذائقون عذابی۔ اگر یہ اصل میں تھا تو یہ پھر متکلم کیسے آیا انا لذائقون؟ کہتے ہیں پھر یہ تبدیل ہوا ہے تکلم کی طرف، پہلے انکم تھا پھر انا لذائقون، جو تبدیل ہوا، کیوں تکلم کی طرف تبدیل ہو گیا؟ چونکہ جو کافرین ہیں نا وہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ سے گفتگو کر رہے تھے، کافر نا تکلم کر رہے تھے ان انفسہم، اپنے آپ سے وہ گفتگو کر رہے تھے کہ انا لذائقون، اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے قول کو یہاں نقل کیا ہے
इन्ना लज़ाइकून, काफिर जो अपने आप को कह रहे थे, अपने आप से गुफ्तगू कर रहे थे, उसको अल्लाह ने यहां नकल किया है। पस आगा जान, इन्ना लज़ाइकून, दिक्कत ये बताती है, गौर फिक्र ये बताता है कि ये क्या है आगा जान, महकी कौल है, महकी कौल है। क्यों महकी कौल है? क्योंकि ये असल में है इन्नकुम लज़ाइकून अज़ाबी। फिर ये तकल्लुम जो है इन्ना, सही है, मुखातब से तकल्लुम की तरफ ये तब्दील हुआ है, अदूल हुआ है। क्यों तब्दील हुआ? चूंकि काफिरीन अपने आप से गुफ्तगू कर रहे थे, काफिर अपने आप को ये बात कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, इस तरह का इस्तेमाल है भी सही, ठीक है या नहीं? इस तरह का इस्तेमाल पाया भी जाता है। मसलन एक मिसाल देता हूं, उस्ताद शागिर्द को कहता है कि अगर तुम अच्छा दर्स पढ़ोगे तो कामयाब होगे। अगर तुम, मुखातब, अगर तुम अच्छा दर्स पढ़ोगे तो कामयाब होगे। फिर वही तालिब इल्म अपने उस्ताद की बात को एक दोस्त को नकल करते हुए बताता है कि उस्ताद ने मुझे कहा, अगर मैं दर्स पढ़ूंगा, अगर मैं, उस्ताद की बात को नकल कर रहा है कि उस्ताद ने कहा, उस्ताद ने मुझे कहा, अगर मैं दर्स पढ़ूंगा तो कामयाब हूंगा। ठीक है, तो ये है, ठीक है, इन्नकुम था, लेकिन ये मुतकल्लिम, ज़मीर मुतकल्लिम की तरफ जो इस्तेमाल हुआ है, चूंकि काफिरीन इस जुमले को अपने आप से कह रहे थे। ठीक है, तो भला नतीजा क्या निकला जान? क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं भाई? तंबीहात के बारे में आज का हमारा दर्स है। पहली तंबीह इसमें है कि कौल के बाद एक जुमला जुमला महकी आया है, लेकिन है मख्फी, वाज़े और रोशन नहीं है, मख्फी है, हल्का है, मख्फी है, सही है, मख्फी है, यानी खेली रोशन और वाज़े और आश्कार नहीं है। मख्फी मतलब ये है खेली, बिल्कुल वाज़े दलालत कर रहा हो, इस तरह नहीं है। वो क्या है? कौल के बाद जुमला महकी मख्फी है। फ़हक्का अलैना कौल रब्बिना इन्ना लज़ाइकून, ये कौल के बाद इन्ना लज़ाइकून महल शाहिद है, ये महकी कौल है और इसका महकी कौल होना मख्फी है। आप कहोगे जी क्यों मख्फी है? भला मख्फी होने की क्या दलील है? मख्फी होने की दलील ये है कि अल्लाह ताला तो हरगिज़ अज़ाब को चखने वाला नहीं है ना। कहें कौल रब्बिना इन्ना लज़ाइकून, अल्लाह ताला तो हरगिज़ अज़ाब को चखने वाला नहीं है, ताकि मुतकल्लिम की ज़मीर को इस्तेमाल किया जाए। बस ये महकी कौल नहीं है। लेकिन गौर फरमाएं, दिक्कत करें तो अर्ज किया है कि ये महकी कौल है और महल्ले नस्ब में है, महकी कौल है। दिक्कत नजर ये है, चूंकि असल में अर्ज कर रहा हूं ये ज़मीर मुखातब थी, चूंकि मुखातब मुनकरीन खुदा जो है ना, उनको ये खिताब किया जा रहा है और उन्हीं को अजाब है। इन्नकुम लज़ाइकून अजाबी, इन्नकुम, ठीक है ना। अल्लाह ने जो है ना, जो कौल फरमाया है वो क्या है? उन्हीं को है। इन्नकुम, के तुम मुनकरो क्या करोगे? लज़ाइकून अजाबी, मेरी अजाब को चखने वाले हो, मेरे अजाब को। मुनकरीन जो है ना खुदा, उनके लिए ज़मीर थी इन्नकुम। फिर अच्छा, फिर सवाल ये है कि अगर वो मुखातब ज़मीर थी, मुनकरीन खुदा के लिए ये बात थी इन्नकुम लज़ाइकून, तो ये इन्ना लज़ाइकून है। कहते हैं फिर ये मुतकल्लिम की तरफ तब्दील हुई है, चूंकि काफिर ये जुमला अपने आप से कह रहे थे, अपने आप से कह रहे थे, अपने आप में वो बात दोहरा रहे थे। और इसके लिए मैंने आपको एक नमूना भी पेश किया है कि फर्ज करें उस्ताद शागिर्द को कहे कि अगर तुम दर्स पढ़ोगे तो कामयाब होगे। फिर वही शागिर्द दोस्त को बता रहा है कि उस्ताद ने मुझे कहा अगर मैं दर्स पढ़ूंगा तो कामयाब होऊंगा। वही बात अपने आप से दोहरा रहा है। ऐसा होता है
लिहाजा ये जो है ना इन्ना ललाइकून, ये महकी कौल है जी, महकी कौल है। ये है जी पहली तंबी मेरे भाइयों, पहली तंबी है। दूसरी तंबी भी मैं पढ़ लेता हूं खुलासा, और उसके बाद फिर तर्जमा इकट्ठा कर लें, ये ठीक है या नहीं। तवज्जो फरमाइए। दूसरी तंबी, कौल के बाद जुमला वाक़ हुआ है जिसमें हिकायत का भी एहतमाल है और गैर हिकायत का भी एहतमाल है। क्या कह रहा हूं? कौल के बाद जुमला वाक़ हुआ है और उस जुमले में ये एहतमाल है कि ये जुमला महकिया है, हिकायत का भी एहतमाल है और गैर हिकायत का भी एहतमाल है। कौल के बाद वाले जुमले में जो वाक़ हुआ है यक़अ बादल कौल, कौल के बाद जो जुमला वाक़ हुआ है इसमें हिकायत का भी एहतमाल है और गैर हिकायत का भी एहतमाल है। ठीक, मसलन अतकुल मूसा फिद्दार, कौल के बाद, तकुलो के बाद मूसा फिद्दार, ये जुमला जो है इसमें दो एहतमाल हैं, दो, कि ये महकी है, महकी कौल है, और यह भी एहतमाल है कि ये महकी कौल नहीं है। इसी में मल्ले शायद है हमारा। अतकुलो मूसा फिद्दार, कौल के बाद जो जुमला आया है मूसा फिद्दार, इसमें यह एहतमाल है कि ये महकी कौल है और यह भी एहतमाल है कि महकी कौल नहीं है। दूसरी तंबी यही बता रही है भाइयों कि कौल के बाद कभी कभी एक जुमला वाक़ हो रहा है जिसमें दो एहतमाल हैं, महकी होने का भी एहतमाल है, ये जुमला महकी है, और गैर महकी होने का भी एहतमाल पाया जा रहा है। अतकुल मूसा फिद्दार, तो यहां गौर फरमा लिया आपने, तकुलो के बाद वाला जुमला मूसा फिद्दार, इसी में बात कर रहा हूं, महकी होने का भी एहतमाल है, गैर महकी होने का भी एहतमाल है। अच्छा, पहले ये बताऊं गैर महकी कैसे होगा? जब तकुलो बेमाने जन लेंगे। ठीक है, कौल जारी मजरा किसके करेंगे? जन के। कौल जारी मजरा, कौल बमाना जन, कौल को जारी मजरा जब जन के करोगे ना तो फिर ये नतीजा निकलेगा भाइयों कि मूसा बनेगा मफूल अव्वल, फिद्दार बनेगा मफूल सानी, और तकुलो ताकिदो के मानने में, तजुन्नो के मानने में, तकुलो तजुन्नो के मानने में कौल वाला मादा मजराए जन पे आता है। ठीक है या नहीं? कौल मजराए जन के ऊपर जब ले लेंगे, यानी कौल बमाने जन, जन अतजुन्नो, जब ये ले लिया, कौल को जन के मानने में लिया, तो फिर ये महकी कौल नहीं है, मूसा फिद्दार महकी कौल नहीं है। ठीक है, बल्कि मूसा मफूल अव्वल है, फिद्दार दूसरा इसका मफूल है। ठीक हो गई बात? अच्छा, इसी मूसा फिद्दार को अभी मैं बना रहा हूं महकी। क्या करेंगे? कहें कि तकुलो अपने मानने में है, तजुन्नो के मानने में नहीं है, और तकुलो का ये मूसा, ठीक, मुबतदा है, फिद्दार खबर है। मुबतदा और खबर दोनों क्या हैं? ये जनाब अली मुबतदा और खबर क्या हैं? ये महकी हैं, महकी कौल हैं। मूसा मुबतदा, फिद्दार खबर, मुबतदा खबर, ये क्या है? जुमला महकी कौल है। अतकुलो कौल के लिए ये क्या है जान? महकी है, महकी कौल है यानी। ठीक है, ज्यादा आपके सर में दर्द न लगाऊं, बात ये चल रही है दूसरी तंबीह में कि कौल के बाद एक जुमला आता है जिसमें दो एहतमाल हैं, महकी कौल है, गैर महकी है। जैसे अतकुल मूसा फिद्दार में जब तकुलो को जारी मजरे जन के करेंगे यानी अतजुन्नो, तो ये मूसा फिद्दार महकी कौल नहीं है, बल्कि मूसा पहला मफूल है, दार दूसरा मफूल बनेगा फिद्दार। लेकिन जब तकुलो अपने मानने में रहे, ठीक है, तजुन्नो के मानने में ना ले, तो मूसा
मुब्तदा फिद्दार खबर, ये जुमला तकूलो का क्या बनेगा, महकिए कौल है। दो एहतिमाल हो सकते हैं इसमें कि ये हो गया, जैसा कि जनाब ये देखो अगली आयत में क्या है, जो है जुमला महकिए कौल है, अम तकूलून इन्ना इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व याकूब व लस्बात कानू हुदन और नसारा। इन्ना इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व याकूबा, ये जुमला महकिए कौल है, तकूलो की हिकायत कर रहा। इन्ना इब्राहीमा, ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं ये जुमला क्या है जान, महकिए कौल है। इन्ना इब्राहीम व इस्माईला महकिए कौल है तकूलो के लिए, ठीक है। दलील क्या है, दलील क्या है, हमजा आया, इन्ना इन्ना आया है। अगर ये जारी मजरे जन होता, ये तकूलो जारी मजरे जन होता, फिर हमजा को, इन्ना के हमजा को फतह देते ताकि इस्म और खबर मिलकर तकूलो के क्या बन जाएं, दो मफऊल बन जाएं। लेकिन ये इन्ना पढ़ना, कसरा के साथ पढ़ना, क्योंकि जो महकिए कौल होता है ना वो जुमला होता है। इन्ना इन्ना पढ़ा, इन्ना का पढ़ना इस बात की दलील है कि ये महकिए कौल है, ठीक है। तकूल अगर तजुन्नु के मानने में लें तो फिर अन्ना पढ़ना चाहिए ताकि वो उसका जाके जुमला मफऊल बने, ठीक हो गई बात अगर जान। इसमें फरमाया है कि देखो अगर ये जो कौल है ना, इसके अंदर मजराए जन के मकाम पर जारी होने की शरूत हैं। कौल में जो है मजराए जन जारी होने की शरूत हैं, लेकिन फिर भी जुमला जुमला महकिया है, यानी जायज़ है। अगरचे इसमें शराइत हैं जन के ऊपर, मजराए जन पर जारी होने की, लेकिन फिर भी जो है जुमला जुमला महकिया आया है, चूंकि जायज़ है, कोई मसला नहीं है। यहाँ छोटी सी बात कर लेते हैं कि कौल को जो बेमाने जन लेते हैं उसकी क्या शराइत हैं। कौल बेमाने जन, कौल बेमाने जन के जो ले रहे हैं उसकी चंद शराइत हैं। फेल एक तो मुजारे वाला हो, फेल बेसूरत मुजारे हो। नंबर दो, फेल मुजारे में सीगाए खिताब हो, पहली शर्त मुजारे हो। दो, फेल मुजारे में खिताब हो। तीन, मुजारे अदाते इस्तिफाम के बाद हो। नंबर चार, इस्तिफाम और मुजारे के दरमियान ज़र्फ और जार मजरूर के अलावा फासला भी ना हो, ठीक हो गई अजीज़ो बात। ये दो तंबीहें हैं जो आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। अभी मैं आपके लिए इसका तर्जमा कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अलल्लाह हस्बी अल्लाह। तंबीहातुन, अल अव्वलु मिनल जुमलिल महकियते मा कद यख्फा। अल अव्वलु यानी तंबीह अव्वल, मिनल जुमलिल महकिया मा कद यख्फा, जुमले महकिया में से है जो कभी कभी क्या होता है, मख्फी होता है। फमिन ज़ालिका फिल महकियते बअदल कौले, मिन ज़ालिका जुमले महकिया, ज़ालिका जो मख्फी होता है उसमें से है, फिल महकिया बअदल कौले, कौल के बाद, ठीक है। ये नहीं कि जो जुमला मख्फी होता है उसके मवारिद में से है। दोबारा सुनो, अल अव्वलु मिनल जुमलिल महकिया मा कद यख्फा, पहली तंबीह है जुमले महकिया में से जो कभी कभी क्या होता है, जुमला मख्फी होता है। जुमले महकिया में से जो कभी कभी मख्फी होता है। फमिन ज़ालिका फिल महकियते, मिन ज़ालिका यानी खिफाए जुमले महकिया में से है। बादल कौल, कौल के बाद। फहक्का अलैना कौल रब्बिना इन्ना लज़ाइकून, ये है महल्ले शाहिद हमारा, इन्ना लज़ाइकून। ये जुमला महकी ये कौल है लेकिन है मख्फी, ठीक। वजाहत कर चुका हूँ, ज़्यादा तौज़ी भी अच्छी नहीं है, क्यों मख्फी है वो बताया मैंने। इन्ना लज़ाइकून ये जुमला महकी है लेकिन मख्फी है, महकी होना, ठीक है। माना क्या इसका,
पूरी हो गई हमारे बारे में बात हमारे रब की कि अब हमें मजा चखना पड़ेगा। फहक्का अलैना, हमारे बारे में हतमी हो गई, पूरी हो गई। कौल रब्बिना, बात हमारे रब की कि अब हमें मजा चखना पड़ेगा। वल अस्लो इन्नकुम लज़ाइकून अज़ाबी, असल में था इन्नकुम यानी तुम लज़ाइकून अज़ाबी, मेरे अज़ाब को चखने वाले हो। और मुनकरीन खुदा को खिताब है। सुम्मा अदला इला तकल्लुम, फिर तकल्लुम की तरफ अदूल हुआ है। इन्ना लज़ाइकून, क्यों मुखातब से मुतकल्लिम की तरफ आए? ले अन्नहुम तकल्लमू बिज़ालिका अन अनफुसिहिम, इसलिए ले अन्नुम, इसलिए कि काफिरीन तकल्लमू, गुफ्तगू कर रहे थे, बिज़ालिका, इससे, अन अनफुसिहिम, अपने आप से वो तकल्लुम कर रहे थे, इसलिए ज़मीरे मुतकल्लिम को इस्तेमाल किया है, चूंकि काफिरों का आपस में खुद अपने आप से बात कर रहे थे। जैसा कि बात एक मिसाल भी दी थी। अस्सानी यानी तंबी यदूम, कद यकौ बादल कौल मा यहतमिलुल हिकायत वगैरह, कौल के बाद कभी कभी वाक़ई होता है मा यहतमिलुल हिकायत वगैरह, जुमला जिसमें हिकायत का और गैर हिकायत का एहतिमाल है। कद यकौ बादल कौल मा यहतमिलुल हिकायत वगैरह, कभी कभी कौल के बाद मा यहतमिलुल, कौल के बाद वाक़ई होता है मा, ऐसा जुमला जिसमें हिकायत का भी एहतिमाल है, वगैरह, और गैर हिकायत का भी एहतिमाल है। ना वो अतकूल मूसा फिद्दार, तवज्जो, फलका अन तुकद्दिरा मूसा मफूलन अव्वल व फिद्दार मफूलन सानियन, आपके लिए कि आप मुकद्दर करें, मूसा पहला मफूल है, व फिद्दार दूसरा मफूल है, अला इजराइल कौल मजरा ज़न, ठीक, कौल को जारी मजरा करें, किसकी जगह पे? जन की जगह पे, कि कौल बमाना जन है, अला इजराइल कौल मजरा ज़न, ठीक है, उस पे जारी करेंगे। तो ये फिर होगा जो बताया है कि मूसा पहला मफूल, फिद्दार दूसरा मफूल, और ये जुमला फिर जुमला माकी होगा या नहीं? होगा या नहीं? जुमला माकी नहीं होगा। जब तकूलो तजुन्नो के मानने में ले लिया, तकूलो में जन का माना लिया, और मूसा को पहला दार को दूसरा मफूल बनाए, ये जुमला माकी नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हो ना? अच्छा, वलकान तुकद्दिरहुमा मुब्तदान व खबरा, और आपके लिए कि तुम मुकद्दर करो इन दोनों को, मुब्तदा और खबर, अलल हिकायत, हिकायत की बिना पर को, मूसा मुब्तदा फिद्दार खबर, ये दोनों क्या हैं? ये जुमला है और माह की ये कौल है तकूलों के लिए। वलकान तुकद्दिरहुमा मुब्तदान व खबर, और आपके लिए तुम दोनों को, मूसा फिद्दार को यानी दोनों को मुब्तदा और खबर फर्ज करो, अलल हिकायत, हिकायत की बिना पर, जैसा कि कमाफी कौल ही, जैसा कि अल्लाह ताला के कौल में हिकायत है, अल्लाह ताला के कौल में जुमला माकी है। अम तकूलूना इन्ना इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व याकूबा वल अस्बाता कानू हुदन औ नसारा। तवज्जो, यहां इन्ना इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका, ये जुमला माकी कौल है, तकूलूना के लिए माकी कौल है। माना करें, हम तकूलूना इन्ना इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व याकूबा वल अस्बाता कानू हुदन औ नसारा, कि आप फिर तुम कहते हो कि बेशक इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब थे यहूदी या नसरानी। क्या फिर तुम कहते हो कि बेशक इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब थे यहूदी या नसरानी। अल आया का मतलब है आखिर आया, आया यानी इशारा ये होता है आखिर आया तक मुराद लें। अला तरा अन्नल फ़िअल क़द इस्तौफ़ा शुरूतो इजराई मजरा ज़न व मा हाज़ा जिया बिल जुमलति बादहु मा किया। अल्लाह तरा, कि आप नहीं देख रहे हैं कि कौल जो है ना, कद इस्तौफ़ा शुरूतो इजराई मजरा ज़न, इस कौल में मजरा ज़न पर जारी होने की शरूत पाई जाती हैं। इस कौल में मजरा ज़न की जगह पर जारी होने की शरूत पाई जाती हैं। व मा हाज़ा, बावजूद इसके कि शराइत हैं, जी बिल जुमलत बादहु मा किया, तकूलूना के बाद जुमला जुमले माकी आया है।
شرائط بھی تھی لیکن پھر بھی جملہ محکیہ آیا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ چونکہ جیزے اس کے معنی میں لینا، ٹھیک ہے، اور زن کے معنی میں لے کر وہ جو ہے جملہ محکیہ نہ بنانا واجب تو نہیں تھا نا، صحیح ہے نا؟ اس لیے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو ان القول قد استوفى شروط اجرائی مجرى الظن، کہ قول جو ہے اس میں مجرائے زن کی شرائط پائی جاتی ہیں، وَمَعَ هَذَا جِیَ بِالْجُمْلَةِ بَعْدَهُ مَحْکِیَّةً، اس کے باوجود کی شرائط پائی جاتی ہیں جملہ بعدہ اس تقولون کے بعد کیا ہے؟ محکیہ آیا ہے، اس کے بعد جملہ جو آیا ہے وہ کیا آیا ہے؟ محکیہ آیا ہے، ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ اچھا، اس کے بعد والا جو تیسری تنبیہ ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ شروع کروں تو تنبیہ دقیق ہے، ممکن ہے آپ کا وقت زیادہ لے جاؤں، لہذا میرے خیال میں اسی جگہ پہ روک لوں تو بہتر ہے۔ موفق مید رہو، سلامت رہو عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔